Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. Want to completely understand everything in your target language? In this guide, you'll learn the top 10 ways to improve your listening skills with our lessons. Let's begin. Number 1. Take your very first lesson. The best way to practice listening is to just start listening. Expose yourself to native speakers as much as possible. So, access any audio or video lesson on the site and press the play button to get started. You can do the lessons on the site or on the app while you're on the go. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign up page to create an account. It takes less than 30 seconds and it's free. Then click on the play button on any lesson and start learning. Number 2, slow the lesson down. Now, if a conversation is too fast for you, simply adjust the playback speed in the lesson control bar and listen to it again at a slower speed. This will help you understand every word. Another way to pick apart every word that you hear is read along as you listen. Just read along as you listen, and you'll never miss a word. You can read along with the lesson notes or lesson transcript that come with every lesson. The lesson notes give you the dialogue, the translations, and in-depth grammar tutorials. The lesson transcript is the full word-for-word transcript of everything you hear. You can also read along with the Dialogue Study tool, which gives you the line-by-line breakdown of the conversation, including the audio and translations. Number 4, listen to the line-by-line breakdown with the very same Dialogue Study tool. What makes this tool so powerful is you can listen to each line individually and replay it as much as you want until you understand every single word. This is useful for mastering fast conversations that you would miss otherwise. Number 5, listen to the dialogue track. The dialogue track gives you the conversation of that lesson in the target language only, no translations. And you have this tool in every audio lesson. Listen to it and see how much you can understand. Number 6, download the dialogue tracks and make a playlist. This is a great immersion tactic. Download the tracks to your computer or mobile device. Then, play them on a loop to immerse yourself in the language and improve your listening skills. Each track is only about 10 to 30 seconds, so it won't take you long. Number 7, play the vocabulary slideshow. You get the slideshow study tool with all of our audio lessons and vocabulary lists. Click on Start Slideshow. Sit back and listen. You can also play it on loop and immerse yourself in the language. Number 8, get listening assignments from your Premium Plus teacher. You can also get assignments covering reading, writing, speaking, and even listening from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You can get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number 9, take the listening comprehension lessons. These lessons are designed to test your listening skills. You'll hear a dialogue in the target language, and based on the dialogue, you'll be asked to answer a question to check if you understood. There are no translations here, except for the subtitles. Read along with the subtitles to understand everything. Number 10, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons from absolute beginner level to advanced, then visit our lesson library. You get instant access to all of the pathways and lessons that will help you master all areas of the language, including listening. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hi everyone! Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over 4 levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go! Level 1. Absolute Beginner. एक महिला और आदमी एक तस्वीर देख रहे हैं। वे कौन सी तस्वीर देख रहे हैं?
ये आपके बेटे की फुटबॉल टीम की तस्वीर है ना? इनमें आपका बेटा कौन है? यह है। अच्छा, सबसे लंबा वाला। हाँ, वह मुझसे भी लंबा है। एक लड़का अपनी डायरी से पढ़ रहा है। लड़के ने दिन में सबसे पहले क्या किया? आज मौसम बहुत अच्छा था। मैं दोपहर में पूल में तैरा और फिर शाम को पिक्चर देखने गया। मैंने पूरी सुबह पढ़ाई भी की। आज काफ़ी अच्छा दिन था। एक आदमी डॉक्टर के क्लिनिक पर फोन कर रहा है। उसे डॉक्टर के क्लिनिक पर कितने बजे पहुंचना है? नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आज क्लिनिक कितने बजे बंद होगा? हम शाम के 6 बजे क्लिनिक बंद करते हैं, लेकिन 5:30 बजे से पहले आइए। अच्छा, शुक्रिया। एक आदमी और औरत एक रेस्टोरेंट में बैठे मेन्यू देख रहे हैं। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? तुम क्या लोगी? पिज़्ज़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं सोच रही हूँ वही ऑर्डर करूँ। मैंने कल ही पिज़्ज़ा खाया है, तो अच्छा, तो फिर बर्गर कैसा रहेगा? हाँ, वह ठीक रहेगा। एक महिला किताबों की एक दुकान में दुकानदार से सवाल कर रही है। महिला कौन सी किताब देखना चाहती है? भैया, मैं उस शेल्फ पर रखी किताब देखना चाहूंगी, कौन सी किताब? जो गाड़ियों के बारे में है। 1 मिनट रुकिए। यह वाला? हाँ, यही है। यह लीजिए। Level 2, Beginner. एक आदमी और औरत कंपनी के बिजनेस कार्ड की डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। वे कौन सी डिज़ाइन चुनते हैं? हमारे पास यह कुछ नए डिज़ाइन हैं कंपनी के बिज़नेस कार्ड के लिए। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? ज़रा देख लें। मुझे लगता है कंपनी का नाम और बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो ये वाले। हाँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि कंपनी का नाम बड़ा है और सबसे ऊपर में है। इनमें से एक में तस्वीर की जगह है। इसके बारे में क्या लगता है? उससे अक्षर बहुत छोटे हो रहे हैं। हाँ, अक्षर पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो फिर दूसरे वाले को रखते हैं। आप मौसम का समाचार सुन रहे हैं। रिपोर्ट क्या है? सुबह में धूप रहेगी, लेकिन दोपहर के समय बादलों के छाने की संभावना है और रात से बारिश भी शुरू होगी। बारिश फिर लगातार कल सवेरे तक चालू रहेगी, जिसके बाद से फिर सूरज निकल आएगी। एक आदमी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा है। वो क्या खरीदने वाला है? हेलो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। अच्छा, आते वक्त कुछ ले सकोगे? ठीक है, क्या लेना है? कल के सुबह के नाश्ते के लिए दूध और डबल रोटी चाहिए। दूध और डबल रोटी। ठीक है, कितने पैकेट दूध? एक काफ़ी है। ठीक है, और कुछ? 1 मिनट देखने दो मक्खन है कि नहीं। हाँ है। अच्छा, और बियर है घर पे? हाँ, 1 बोतल है। अच्छा, तो फिर अभी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना ही। एक आदमी और औरत दफ्तर के प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं। पुराना वाला प्रिंटर कहाँ है? नया प्रिंटर कहाँ रखें? मुझे लगता है जहाँ पुराना वाला रखा है, वहीं रखना चाहिए। लेकिन पुराना वाला तो अभी भी चल रहा है। हम उसे रखने वाले हैं। अच्छा, तब नया वाला वहाँ नहीं रख सकते। हाँ, काश वह रख पाते। नया प्रिंटर दरवाजे के बिल्कुल पास के शेल्फ पर सही रहता, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही रख सकते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है हमें कमरे की दूसरे तरफ रखना चाहिए। हाँ, खिड़की के बगल में कैसा होगा? हाँ, वो ठीक रहेगा। एक आदमी गहनों की दुकान में अपनी पत्नी के जन्मदिन का तोहफा ढूंढ रहा है। वह कौन सा हार खरीदेगा? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा हूँ। आप कुछ अच्छा दिखाएंगी? अच्छा, तो ये हार कैसा रहेगा? यह थोड़ा लंबा लगता है।
अच्छा, तो फिर ये वाले कैसे रहेंगे? एक फूल के लॉकेट वाला है यहाँ और एक दिल के लॉकेट वाला। मैं कुछ ज़्यादा अच्छा ढूंढ रहा हूँ। यह मोती का हार कितने का है? ये 3 लाख रुपयों का है। वह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं पहले वाला लूँगा। हाँ, ज़रूर। ये लीजिए। Level 3, Intermediate. एक औरत फ़ोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया। क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं 4 लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ। कृपया कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। बहुत धन्यवाद। एक कंपनी का प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? हाय, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी मेज पे एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डिलीवर कर दो। बिल्कुल, कौन सा डॉक्यूमेंट है? मुझे लगता है वह नीले लिफाफे में है। नीला लिफाफा, ठीक है। लेकिन आपके मेज़ पे 2 नीले लिफाफे हैं। ठीक, एक लिफाफे की ऊपरी दाहिनी तरफ लाल सील है। हरी सील वाला लिफाफा हम नई भर्तियों का अनुस्थापन करते वक्त देते हैं। लाल सील वाला, ठीक है। शाबाश। कृपया इसे दोपहर 1 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट भिजवा दो और कोशिश करना सीधा मैनेजर को ही मिले। तुम उसे जानती हो, ठीक? हाँ, मैं उससे काफ़ी बार मिली हूँ और बात की है। ठीक है। और क्या तुम दूसरा लिफाफा HR डिपार्टमेंट को डिलीवर कर दोगी? जी सर। एक महिला एक लिबास पहनकर देख रही है और दुकानदार से बात कर रही है। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? यह आप पे बहुत जच रहा है और फिटिंग भी बिल्कुल सही है। हाँ, साइज तो सही है, लेकिन मैं ज़्यादातर सादे कपड़े पहनती हूँ। इस तरह के डिज़ाइन नहीं पहना करती। मुझे लगता है आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, फिर भी पहनने के लिए काफ़ी साहस लगेगा। तो फिर यह वाला कैसा है? यह डिज़ाइन थोड़ा सादा है तो ज़्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये पहनकर देखती हूँ। जी देख लीजिए। कैसा लग रहा है मैडम? ये मुझे पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लंबे आस्तीन वाला है क्या? हाँ जी है। शुक्रिया, मैं वो वाला खरीदना चाहूँगी। एक महिला अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? नमस्ते। नमस्ते, मेरा यहाँ 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, रिची के नाम से। हाँ जी रिची जी, इस तरफ आइए। आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक। अच्छा, और आपके सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में। कौन सी साइड में? थोड़ा बाएं तरफ। अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस तरफ आइए। एक पति पत्नी घरों के डिज़ाइन देख रहे हैं। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? ये वाला कैसा होगा? इसमें एक बड़ा सा बैठक कमरा है। हाँ, बड़ा बैठक कमरा अच्छा है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह चाहिए। अच्छा, देखने दो। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ, यह अच्छा है। यह जाकर देख आएं। एक मिनट, इसकी अलमारी कुछ छोटी नहीं है?
हाँ, वो तो है। कोई भी तो बिल्कुल सही नहीं लगता। 1 मिनट, यह वाला कैसा है? हाँ, इसमें सारी चीज़ें सही है ना? अलमारी भी काफ़ी बड़ी है। ये देखने चलते हैं। ठीक है। Level 4 Advanced. एक आदमी और औरत अपने काम के अगले दिन की प्रदर्शन की योजना को लेकर बात कर रहे हैं। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है। क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओह, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने का समय नहीं होगा, तो आज ही देख लेना। यही सबसे जरूरी है। अच्छा, और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी-कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है। सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है, मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। एक महिला फोन पर एक नाटक के टिकटें बुक कर रही है। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्ले हाउस। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं। आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं हैं। अगर आपको ऐतराज नहीं है, तो आपको 2 सीटें हम अलग-अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट हैं? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के 3 सीट बाद एक और खाली सीट है। बाएं तरफ। अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है। यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो पहले बताया था वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। एक महिला अपनी कंपनी के विवरण पुस्तिका और कागज बनाने वाले प्रिंटिंग कंपनी के एक कार्यकर्ता से बात कर रही है। विवरण पुस्तिका की पहली डिजाइन मसौदा की समय सीमा कब है? हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद। हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे? सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिज़ाइन देना पसंद करेंगे, ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिज़ाइन चुन सकें। फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिज़ाइन बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफ़ी होगा एक डिज़ाइन चुनकर आखिरी डिज़ाइन तक पहुंचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिज़ाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। एक आदमी एक खेल क्लब में भर्ती हो रहा है और वहाँ के नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग-अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं।
नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है, और हम सिर्फ जिमखाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ़ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है, शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूँगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूँगा। एक आदमी अपनी कंपनी की सेल्स संपादन के बारे में मीटिंग में प्रस्तुति कर रहा है। वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दिए गए कागज को देखिए। बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है। दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है। अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए। इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है। हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज़्यादा होगी। अब दाएं की चार्ट को देखिए। दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफ़ी सफल रहे। अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई। हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे। How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. वे कौन सी तस्वीर देख रहे हैं? एक महिला और आदमी एक तस्वीर देख रहे हैं। वे कौन सी तस्वीर देख रहे हैं? ये आपके बेटे की फुटबॉल टीम की तस्वीर है ना? इनमें आपका बेटा कौन है? यह अच्छा, सबसे लंबा वाला। हाँ, वह मुझसे भी लंबा है। लड़के ने दिन में सबसे पहले क्या किया? एक लड़का अपनी डायरी से पढ़ रहा है। लड़के ने दिन में सबसे पहले क्या किया? आज मौसम बहुत अच्छा था। मैं दोपहर में पूल में तैरा और फिर शाम को पिक्चर देखने गया। मैंने पूरी सुबह पढ़ाई भी की। आज काफ़ी अच्छा दिन था। उसे डॉक्टर के क्लिनिक पर कितने बजे पहुंचना है? एक आदमी डॉक्टर के क्लिनिक पर फोन कर रहा है। उसे डॉक्टर के क्लिनिक पर कितने बजे पहुंचना है? नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आज क्लिनिक कितने बजे बंद होगा? हम शाम के 6 बजे क्लिनिक बंद करते हैं, लेकिन 5:30 बजे से पहले आइए। अच्छा, शुक्रिया। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? एक आदमी और औरत एक रेस्टोरेंट में बैठे मेन्यू देख रहे हैं। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? तुम क्या लोगी? पिज़्ज़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं सोच रही हूँ वही ऑर्डर करूँ। मैंने कल ही पिज़्ज़ा खाया है, तो अच्छा, तो फिर बर्गर कैसा रहेगा? हाँ, वह ठीक रहेगा।
महिला कौन सी किताब देखना चाहती है? एक महिला किताबों की एक दुकान में दुकानदार से सवाल कर रही है। महिला कौन सी किताब देखना चाहती है? भैया, मैं उस शेल्फ पर रखी किताब देखना चाहूंगी कौन सी किताब? जो गाड़ियों के बारे में है। 1 मिनट रुकिए, यह वाला? हाँ, यही है। यह लीजिए। Level 2. Beginner. Answer. वे कौन सी डिज़ाइन चुनते हैं? एक आदमी और औरत कंपनी के बिजनेस कार्ड की डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। वे कौन सी डिज़ाइन चुनते हैं? हमारे पास यह कुछ नए डिज़ाइन हैं कंपनी के बिजनेस कार्ड के लिए। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? ज़रा देख लें। मुझे लगता है कंपनी का नाम और बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो ये वाले। हाँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि कंपनी का नाम बड़ा है और सबसे ऊपर में है। इनमें से एक में तस्वीर की जगह है, इसके बारे में क्या लगता है? उससे अक्षर बहुत छोटे हो रहे हैं। हाँ, अक्षर पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो फिर दूसरे वाले को रखते हैं। रिपोर्ट क्या है? आप मौसम का समाचार सुन रहे हैं। रिपोर्ट क्या है? सुबह में धूप रहेगी लेकिन दोपहर के समय बादलों के छाने की संभावना है और रात से बारिश भी शुरू होगी। बारिश फिर लगातार कल सवेरे तक चालू रहेगी, जिसके बाद से फिर सूरज निकल आएगी। वो क्या खरीदने वाला है? एक आदमी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा है। वो क्या खरीदने वाला है? हेलो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। अच्छा, आते वक्त कुछ ले सकोगे? ठीक है, क्या लेना है? कल के सुबह के नाश्ते के लिए दूध और डबल रोटी चाहिए। दूध और डबल रोटी। ठीक है, कितने पैकेट दूध? एक काफ़ी है। ठीक है, और कुछ? 1 मिनट देखने दो मक्खन है कि नहीं। हाँ है। अच्छा, और बियर है घर पे? हाँ, एक बोतल है। अच्छा, तो फिर अभी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना ही। पुराना वाला प्रिंटर कहाँ है? एक आदमी और औरत दफ्तर के प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं। पुराना वाला प्रिंटर कहाँ है? नया प्रिंटर कहाँ रखें? मुझे लगता है जहाँ पुराना वाला रखा है वहीं रखना चाहिए। लेकिन पुराना वाला तो अभी भी चल रहा है, हम उसे रखने वाले हैं। अच्छा, तब नया वाला वहाँ नहीं रख सकते। हाँ, काश वह रख पाते। नया प्रिंटर दरवाजे के बिल्कुल पास के शेल्फ पर सही रहता, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही रख सकते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है हमें कमरे की दूसरे तरफ रखना चाहिए। हाँ, खिड़की के बगल में कैसा होगा? हाँ, वो ठीक रहेगा। वह कौन सा हार खरीदेगा? एक आदमी गहनों की दुकान में अपनी पत्नी के जन्मदिन का तोहफा ढूंढ रहा है। वह कौन सा हार खरीदेगा? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा हूँ। आप कुछ अच्छा दिखाएंगी? अच्छा, तो ये हार कैसा रहेगा? यह थोड़ा लंबा लगता है। अच्छा, तो फिर ये वाले कैसे रहेंगे? एक फूल के लॉकेट वाला है यहाँ और एक दिल के लॉकेट वाला। मैं कुछ ज़्यादा अच्छा ढूंढ रहा हूँ। यह मोती का हार कितने का है? ये 3 लाख रुपयों का है। वह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं पहले वाला लूँगा। हाँ, ज़रूर। ये लीजिए। Level 3. Intermediate. Answer. वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? एक औरत फ़ोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था
और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया। क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं 4 लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ। कृपया कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? एक कंपनी का प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? हाय, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी मेज पे एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डिलीवर कर दो। बिल्कुल, कौन सा डॉक्यूमेंट है? मुझे लगता है वह नीले लिफाफे में है। नीला लिफाफा, ठीक है। लेकिन आपके मेज़ पे 2 नीले लिफाफे हैं। ठीक, एक लिफाफे की ऊपरी दाहिनी तरफ लाल सील है। हरी सील वाला लिफाफा हम नई भर्तियों का अनुस्थापन करते वक्त देते हैं। लाल सील वाला, ठीक है। शाबाश। कृपया इसे दोपहर 1 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट भिजवा दो और कोशिश करना सीधा मैनेजर को ही मिले। तुम उसे जानती हो, ठीक? हाँ, मैं उससे काफ़ी बार मिली हूँ और बात की है। ठीक है। और क्या तुम दूसरा लिफाफा HR डिपार्टमेंट को डिलीवर कर दोगी? जी सर। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? एक महिला एक लिबास पहनकर देख रही है और दुकानदार से बात कर रही है। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? यह आप पे बहुत जच रहा है और फिटिंग भी बिल्कुल सही है। हाँ, साइज तो सही है, लेकिन मैं ज़्यादातर सादे कपड़े पहनती हूँ। इस तरह के डिज़ाइन नहीं पहना करती। मुझे लगता है आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, फिर भी पहनने के लिए काफ़ी साहस लगेगा। तो फिर यह वाला कैसा है? यह डिज़ाइन थोड़ा सादा है तो ज़्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये पहनकर देखती हूँ। जी देख लीजिए, कैसा लग रहा है मैडम? ये मुझे पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लंबे आस्तीन वाला है क्या? हाँ जी है। शुक्रिया, मैं वो वाला खरीदना चाहूँगी। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? एक महिला अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? नमस्ते। नमस्ते, मेरा यहाँ 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, रिची के नाम से। हाँ जी रिची जी, इस तरफ आइए। आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक। अच्छा, और आपके सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में। कौन सी साइड में? थोड़ा बाएं तरफ। अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस तरफ आइए। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? एक पति पत्नी घरों के डिज़ाइन देख रहे हैं। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? ये वाला कैसा होगा? इसमें एक बड़ा सा बैठक कमरा है। हाँ, बड़ा बैठक कमरा अच्छा है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह चाहिए। अच्छा, देखने दो। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ, यह अच्छा है। यह जाकर देख आएँ? एक मिनट, इसकी अलमारी कुछ छोटी नहीं है? हाँ, वो तो है। कोई भी तो बिल्कुल सही नहीं लगता। 1 मिनट, यह वाला कैसा है? हाँ, इसमें सारी चीज़ें सही है ना? अलमारी भी काफ़ी बड़ी है। ये देखने चलते हैं। ठीक है। Level 4. Advanced. Answer.
उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? एक आदमी और औरत अपने काम के अगले दिन की प्रदर्शन की योजना को लेकर बात कर रहे हैं। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है। क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओह, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने का समय नहीं होगा, तो आज ही देख लेना। यही सबसे जरूरी है। अच्छा, और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है। सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है, मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? एक महिला फोन पर एक नाटक के टिकटें बुक कर रही है। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्ले हाउस। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं। आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं हैं। अगर आपको ऐतराज नहीं है, तो आपको 2 सीटें हम अलग-अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट हैं? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के 3 सीट बाद एक और खाली सीट है। बाएं तरफ। अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है। यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो पहले बताया था वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? एक महिला अपनी कंपनी के विवरण पुस्तिका और कागज बनाने वाले प्रिंटिंग कंपनी के एक कार्यकर्ता से बात कर रही है। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद। हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे? सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिज़ाइन देना पसंद करेंगे, ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिज़ाइन चुन सकें। फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिज़ाइन बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफ़ी होगा एक डिज़ाइन चुनकर आखिरी डिज़ाइन तक पहुंचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिज़ाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? एक आदमी एक खेल क्लब में भर्ती हो रहा है और वहाँ के नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा?
शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग-अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं। नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है, और हम सिर्फ जिमखाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ़ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है, शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूँगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूँगा। वह कौन से 2 आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? एक आदमी अपनी कंपनी की सेल्स संपादन के बारे में मीटिंग में प्रस्तुति कर रहा है। वह कौन से 2 आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दिए गए कागज को देखिए। बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है। दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है। अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए। इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है। हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज़्यादा होगी। अब दाएं की चार्ट को देखिए। दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफ़ी सफल रहे। अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई। हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे। How's your language level? Let us know in the comments below. And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at 3 practical ways to improve your listening skills. Number 1, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double-check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double-check yourself by turning on the subtitles.
Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number 2, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together, rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number 3, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These 3 tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. All cultures have a form of music. Music is one of the most basic tools we can use to learn a language. Parents use music and songs to teach their young children simple words. Music can help us focus, help us remember better, and thus help us as we acquire a language. Music can aid our coordination and physical development too. So, how do we use music to support our language learning now, as grown people? In this video, we'll look at 4 ways to use music to study a language. Imitating structures and rhythms is important when learning a language, and the same is true for music. When children play with other children, they listen to songs, move their bodies as they play games, and try to imitate what they see and hear. This practice of regular imitation aids children as they gain their language skills. Repeating song lyrics like those from nursery rhymes helps kids retain words and expressions. Children may not know the meanings of all the words in the songs they sing, but they remember the songs, the vocabulary, and the rhythms. Children practice making sounds by mimicking the pronunciation of words. This can be the first step to the child understanding the meaning and use of a word. You might not realize it, but you probably still remember many of the songs and rhymes you learned when you were a child. We're able to remember expressions, words, and ideas effectively when they're put to music. This is also the reason you can memorize the lyrics of songs you like rather easily. Patterns like those in many popular songs are repetitive. We review the rhythms and the words each time we listen. Everybody's different, so if you want to use music to support your language learning, we're here to provide 4 different ways. Number 1, passive listening. One way to study with music is through passive listening. You can do this with songs you have in your target language on your computer, a CD, your favorite streaming site. You can use this method as long as you have access to music in the language you want to study.
Turn the music on and let it play in the background while you do something else, like studying, cooking dinner, or cleaning the house. Do this regularly and let your mind get used to the idea of hearing your target language in your environment. This kind of familiarity with the language will help you as you work towards fluency. Passive listening is one form of language immersion. As you listen to the background music over and over and get more comfortable with it, you'll start to notice keywords, intonation, grammar patterns, and so on. With enough practice and with enough different music to listen to, you might even start to recognize certain sounds and words when you hear them somewhere else. Number 2, memorization. You can use music to help build your vocabulary and memorize words effectively. This method focuses on studying lyrics and songs to improve your ability to recall the words. Look up the lyrics to a song you're listening to and review them line by line. You can read the lyrics as you listen to the song or try to remember the next line in the song before it is sung. Memorization practice like this enhances your listening skills and boosts your reading skills. Number 3, sing along. Our first tip in this lesson was to listen passively. This tip, however, is to listen actively by singing along to your music. Look up the lyrics of a song you like. Play the song and try to sing along. You may also be able to find videos on YouTube of popular songs with the lyrics included. If it's difficult at first, don't worry. Remember, regular review and practice is essential. Just as we usually need to hear a song in our native language a few times before we remember the words, you can expect to need to listen several times over a few days before you feel comfortable with all the words. Through practicing this way, you'll learn grammar, spelling, and pronunciation. You'll also get to enjoy a song you like. Moreover, this type of exercise will help you work on your reading and listening skills. A good way to check your progress is by trying to sing the song by yourself. You can sing with no music, or you can try looking for a karaoke version of the song you like. If you can sing all the words, great. If not, you can go back to the lyrics and study a bit more until you master the track. Number 4, transcription. To do this exercise, listen to the song. As it plays, write down or transcribe the lyrics. You can start and stop the song at the end of each line to slow things down a bit. If you begin your studies with this method, you might catch only a few words, but don't get frustrated. Play the song and write down everything you can hear. Then play the song again and write down the words that you missed the first time you listened. With practice like this, your listening skills will improve, and so will your spelling. These are just a few ways that you can use music to study another language. Be patient and don't forget to enjoy the music you're listening to as you study. If you want to start simple, try listening to children's songs in your target language. The song lyrics tend to be repeated a lot, and this can help you identify key words quickly. Learning a language through music is fun. It can help you focus your attention and improve your memory. This can be a great part of your self-study plan. If you want to get more tips on learning language, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.